Hello everyone, welcome to LRNR classes. Today we are going to discuss about the development of endosperm. Okay, so which is the one of the post fertilization events. So previous class में हमने discuss किया था about development of embryo in monocotyledon plant as well as in dicotyledon plant. Okay, so in this class we will discuss about the development of endosperm. So first we have to know what is endosperm. Endosperm क्या है? As we know in the double fertilization class, so double fertilization में क्या होता है? There are two male gametes. Okay, male gametes are two in the angiospermic plant. Okay, so एक male gamete का fusion होता है with the egg apparatus. Okay, one of the male gametes get fused with the egg apparatus, and another male gamete get fused with the secondary nuclei. ओके सो इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता था इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते थे. तो इसलिए जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूजन था, एज ए रिजल्ट द फ्यूजन प्रोडक्ट इज एंडोस्पर्म. ओके, so endosperm is defined as the fusion product of secondary nuclei and one of the two male gametes in the angiospermic plant. Okay, so already secondary nucleus is the fusion of two polar nuclei. As we know, already secondary nuclei is the fusion product of two polar nucleus. So यहाँ already 2n है and इधर एक और मेल गैमेट आ गया. So the endospermic nucleus is triploid. Okay, so in the angiospermic plant, the endospermic nucleus is in triploid form because it is produced after fertilization. But in gymnospermic plant, the endosperm is haploid because it is formed before fertilization. Okay, so इसका मेजर फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो उसे कंज्यूम करके वो डेवलप करेगा एंड सीड में कन्वर्ट होगा. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. सो एंडोस्पर्मिक जो फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म 3 टाइप्स में तैयार होता है. ओके, फर्स्ट टाइप इज योर न्यूक्लियर टाइप एंड सेकेंड टाइप इज योर सेलुलर टाइप एंड थर्ड टाइप इज योर हेलोवायल टाइप. Okay, so first we will discuss about what is the nuclear type of endosperm formation. So let's discuss about the nuclear type of endosperm development. Okay, so ये इसमें क्या होता है? Only nuclear division occurs. Okay, जो primary endosperm nucleus होता है, ये PN means primary endosperm nucleus, which is formed by the fusion of secondary nuclei and the male gamete. Okay, so this nucleus undergo only nuclear division. Okay, by repeated mitotic division. यहाँ तो सेल का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन वो माइटोटिकल डिवीजन होता है, बट ओनली न्यूक्लियर डिवीजन occurs. Okay, no cytoplasmic division occurs. No cytoplasmic division. Okay, so in this type of endosperm development, the PEN or primary endosperm nucleus undergo repeated nuclear division without cytokinesis or without cytoplasmic division. Okay, cytokinesis मतलब division of cytoplasm. ओके, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है. सो आज रिजल्ट क्या होता है? दिस इज द जाइगोट एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, सो क्या होता है? ओनली न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, सेवरल न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक. ओके, सो धीरे धीरे क्या होगा? आफ्टर ए लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड. व्हेन ए वैक्यूल इज फॉर्म्ड विद इन द सेल, आफ्टर ए लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड, देन ये जो है, जो न्यूक्लियर टाइप डिवीजन है, वो धीरे धीरे पेरीफेरी रीजन तक आ जाएगा. ओके, द न्यूक्लियर ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द पेरीफेरी रीजन. ओके, सो आफ्टर शिफ्टिंग द पेरीफेरी रीजन, धीरे धीरे ये क्या होंगे? द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स.
ओके, द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट, यहाँ धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है एंड इट लीड टू सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये देखो धीरे धीरे सेल वॉल टाइप का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो after the nuclear type endospermic development, then it lead to cellular type of endosperm. Okay, so हमारा जो कोकोनट, इसका क्या एग्जाम्पल है हमारा कोकोनट। ओके, ये कोकोनट केस में क्या होता है, सो जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, दिस इज द स्टेज ऑफ कोकोनट एंडोस्पर्म। सो इसलिए कोकोनट के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंड ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, जो मिल्की कलर का जो पार्ट है, दैट इज द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, सो ये होता है आपके कोकोनट के केस में। सो इसका और एक एग्जांपल क्या है, राइस, व्हीट, मेज, सनफ्लावर, कॉटन, ये सब के केसेस में जो एंडोस्पर्मिक फॉर्मेशन होता है, दैट इज द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सो इसमें क्या होता है, the primary endosperm nucleus undergoes a transverse division. Okay, undergoes a transverse division resulting into two cells. One is micropylar cell and another one is chalazal cell. Okay, so यहाँ क्या होता है, in the nuclear type of division क्या होता था, only karyokinesis occurs. Karyokinesis मतलब only nuclear division occurs. Okay, and not without cytokinesis. In not immediately साइटोकाइनेसिस ऑकर्स। सो कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होता था। ओके, लेकिन यहाँ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस ऑकर्स एंड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस आल्सो ऑकर्स। ओके, सो एक सेल डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ओके, जब न्यूक्लियस का पूरा डिवीजन हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली इमीडिएटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता था। सो आज ए रिजल्ट एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होते थे। सो यहाँ क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन। जो सेल में पर्टिकुलर डिवीजन होता है, दैट टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन द सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सो यहाँ क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस डिवीजन अकर्स एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑल्सो अकर्स। सो आज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन, द होल एंडोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेल, वन इज माइक्रोपाइलर एंड अनदर वन इज चालाजल। ओके, सो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड में, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड में धीरे धीरे न्यूक्लियस का अगेन फर्दर डिवीजन होता है। ओके, तो माइक्रोपाइलर रेट इज वेरी फास्ट एज कंपैरिजन टू चालाजल चैम्बर। ओके, माइक्रोपाइलर सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन फास्टर रेट में होता है एंड चालाजल का डिवीजन स्लो रेट में होता है। So this is the type of cellular type of endosperm division. Okay, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है as well as साइटोकाइनेसिस भी होता है, लेकिन न्यूक्लियर में क्या होता था, ओनली कैरियोकाइनेसिस होता था एंड साइटोकाइनेसिस डज नॉट occur immediately after. And after when the nuclear shifted to the periphery region, then धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। This is the cellular type of endosperm division and it is not very common type of endosperm development, but the nuclear type of endosperm development is very common type of endosperm development. So इसका examples क्या है, पेटूनिया, balsam, datura, loranthus etc. These are the examples of cellular type of endosperm. So let's discuss about halovial type of endosperm development. So इसमें क्या होता है, this is the intermediate between the nuclear and cellular type. Okay. सो इंटरमीडिएट, सो न्यूक्लियर टाइप डिवीजन भी होता है एंड सेलुलर टाइप की डिवीजन दिखाई देता है। सो ये पर्टिकुलरली कॉमन इन मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ओके, सो इस टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होता है, माइक्रोपाइलर, दिस अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन अकर्स। ओके, एंड द माइक्रोपाइलर चैम्बर इज लार्जर देन द चालाजल चैम्बर एंड द ट्रांसवर्स डिवीजन रिजल्टिंग इनटू two chamber, one is micropylar chamber and another one is smaller chalazal chamber. So micropylar chamber में जो होता है न्यूक्लियस का फर्दर डिवीजन होता है। ओके, जो माइक्रोपाइलर चैम्बर में न्यूक्लियस डिवीजन होता है एंड रिजल्टिंग इनटू न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंड द चालाजल चैम्बर में न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो यहाँ माइक्रोपाइलर में न्यूक्लियर टाइप दिखाई देता है एंड ये चालाजल में सेलुलर टाइप दिखाई देते हैं। सो दिस इज द
type of halovial type and intermediate between cellular type and nuclear type of endosperm development. So example is the erismas is one of the example of the halovial type of endosperm development. So next come to another post fertilization event, that is the development of seed. Okay, so what is seed? The seed is defined as a fertilized mature ovule that possesses an embryonic plant, then stored food as well as protective coat or coats. Okay, so seed जो develop होता है that is from your ovule. The complete ovule is developed into seed. So when the embryo matures, the ovule is increased in size. Okay, so धीरे धीरे क्या होगा, integument स्टार्टिंग टू ड्राई जो इंटेगुमेंट ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर धीरे धीरे चला जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है हो रहा था उसके अंदर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा. दिस स्टार्ट्स टू रिड्यूस. ओके, एंड द रिजर्व फूड मटेरियल्स, ओके, द फूड मटेरियल्स एट स्टोर्ड एज द स्टोर्ड इन इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स. ओके, सो धीरे धीरे वो सीड क्या होगा, डर्मांट स्टेज में एंटर कर जाएगा. Okay, so the ovule turns into the seed. Okay, so when the ovule gets fertilized with the male gamete, then it is developed into embryo. Okay, वो जाइगोट में डेवलप होगा, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा. सो एम्ब्रियो का जब मैच्योरिटी आ जाएगा, जब एम्ब्रियो का फुली डेवलपमेंट हो जाएगा, देन एम्ब्रियो बिकम्स इनटू सीड. कैसे ना, धीरे धीरे ओव्यूल का धीरे सारा स्ट्रक्चर कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स का लॉस होगा, कुछ नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा. सो आफ्टर सो मेनी चेंजेस इन द ओव्यूल, धीरे धीरे ओव्यूल क्या करेगा, ड्राई होने लगेगा, मॉइस्चर लॉस होना लगेगा. ओके, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रिड्यूस होना लगेगा. सो देन द ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड. ओके, सो आफ्टर सीड इज डेवलप्ड, देन seed is entered into a dormant phase. Enter into a dormant phase. Next, the seed germination starts by the inhibition by the act of gibberellic acid. Okay, so the seed germination promoted by gibberellic acid and inhibited by abscisic acid. These two are the plant hormone. ओके, ये तो प्लांट हार्मोन होता है. जिबरेलिन जो होता है वो ग्रोथ में डेवलप करता है और ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए अब्सिसिक एसिड होता है. So there are so many changes and seed is the basic structure of ovule. क्योंकि ओव्यूल ही सीड को डेवलप होता है, ओव्यूल ही धीरे धीरे सीड को डेवलप होता है. सो व्हाट आर द चेंजेस ऑफकोर्स इन द ओव्यूल. ओके, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूल तक पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट थे, मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा याद दिला देती हूँ. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या था, ये है इसका इंटेगुमेंट, दिस इज द एम्ब्रियो sac, दिस इज द antipodal cell, दिस इज द secondary nuclei, दिस इज द egg apparatus and filiform apparatus and these are the nucellus cells. ओके, ये है आपका इंटेगुमेंट. This is the funicle. Okay, this is the raphe, nucellus, antipodal cell. Here is the secondary nuclei, egg apparatus and filiform apparatus. Okay, so this is the overall structure of a ovule. So ovule तो पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. Then integument जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, it develops into the seed coat. ओके, ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो इंटेगुमेंट है वो सीड का आउटर कवरिंग बन जाएगा. ओके, देन द आउटर इंटेगुमेंट, दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट कन्वर्ट्स इनटू टेगमेन. फनिकल, दिस फनिकल इट कन्वर्ट्स इनटू सीड स्टॉक. ओके, एंड न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस है, this is either degenerates or present as covering of endosperm. Okay, और synergids, जो synergids यहाँ होता है, the synergids gradually degenerates and the egg cell, जो egg apparatus जो होता है वो तो embryo में बन जाता है after fertilization with the male gamete and the antipodal cell it remains at the chalazal end, that is degenerates and secondary nucleus, आप तो ये जानते हो, मैंने previously discuss भी किया हुआ है, it develops into endosperm and the micropyle remains as a fine pore.
This is the micropylar end. It remains as a fine pore in the seed coat. Okay. So this is all about your development of seed. So let's discuss about the classification of seed. Seed का कितना टाइप का seed होता है. So let's discuss about the types of seeds. Okay. So on the basis of presence or absence of endosperm. Endosperm किस में होगा और endosperm किस में absent होगा. So on the basis of that, the seed is divided into three types. One is albuminous or endospermic. Next one, exaluminous or non-endospermic, and another one is perispermic. Okay. So first come to albuminous और endospermic क्या है. If the ovule, as we know, endosperm क्या करता है. Endosperm डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो जो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, देन दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड अल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक टाइप सीड. यहाँ ऑल द फूड मटेरियल स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, नॉट इन द cotyledon. Okay, so it is of two types, dicot albuminous and monocot albuminous. What are the examples? Castor bean, jute, cotton, mirabilis. These are the dicot type albuminous seed. And the monocot type albuminous seed examples are rice, wheat, maize. These are the monocot albuminous seed. Okay, so next come to what is exalbuminous or non-endospermic seed. As you know, this is the complete opposite of the एंडोस्पर्मिक सीड. यहाँ क्या होता है, द एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है, एंडोस्पर्म से खाना नहीं लेता. ओके, सो ऑल द फूड स्टोर्ड इन द cotyledon in the embryo. Okay, so it is also two types. One is dicot, another one is monocot. So dicot का एग्जाम्पल है Payasum sativum, which is the garden pea, and Tamarindus indica. And monocot examples का एग्जाम्पल है Vallisneria. Okay, and alisma. These are the examples of monocot non-endospermic seed. Next, another one is perispermic. Okay, so after consuming the endosperm, the developing zygote, by the developing zygote, some residue is left. कुछ endosperm रह जाता है. Okay, so this is the perispermic type seed. Okay, and the examples only ये बहुत rarely दिखता है, Piper nigrum and Vita vulgaris. These are the two examples of perispermic type seed. So let's discuss about the development of fruit. It is also one of the post fertilization events. So what is seed? It is the ultimate product of angiosperm. So finally angiosperm का जो fertilization होता है, fertilization में क्या होता है, the zygote develops into embryo and embryo develops into seed. And the जो ovary होता है, ये तो ovule converted into the seed. And जो ovary जो होता है वो completely fruit में convert हो जाता है. As we know, this is the female part of your angiospermic flower. Okay, ये है आपका स्टाइल, ये है आपका स्टिग्मा एंड ये है आपका ओवरी. ये जो कंप्लीट ओवरी होता है, दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ये ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है. ओके, सो इट इज डिफाइंड ऑल्सो एज फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओवरी विथ और विदाउट एसोसिएटेड पार्ट. इसका एसोसिएटेड पार्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, एंड कंटेनिंग वन और मोर सीड्स. इसका सीड अंदर जो सीड होता है वो एक होता है, ज़्यादा भी हो सकता है. सो इट लेव्स टू स्कार्स. ये जो फ्रूट कंप्लीटली डेवलप होने के बाद आप देख सकते हो फ्रूट के अंदर टू स्कार्स होते हैं. ओके, सपोज दिस इज अ आम्बो, यहाँ एक मैंगो, इस यहाँ एक होता है स्कार एंड यहाँ एक होता है स्कार. ओके, सो ये जो स्कार होता है दैट इज फ्रॉम फॉलन स्टाइल. यहाँ से एक स्कार मिलता है एंड वन इज फ्रॉम डिटैचमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट. सो ये जो पेरेंट प्लांट, जो फ्लावर कनेक्टेड होगा फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ओके, वन इज डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अनदर वन इज फ्रॉम डिटैचमेंट ऑफ द स्टाइल. सो इट लेव्स टू स्कार आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. देन वॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. क्या बोलते हैं उसे? पेरिकार्प. इफ द फ्रूट कवरिंग इज थिन एंड ड्राई, अगर वो पतला होगा देन इट इज नॉट फर्दर डिफरेंशिएटेड. ओके, एंड द एग्जांपल्स आर पी, बीन, calotropis, cotton. These are the examples of the thin and dry type pericarp fruit. And if the pericarp is thick
एंड फ्लेसी। ओके, अगर वो कवरिंग जो मोटा होगा, थिक एंड फ्लेसी होगा, देन इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 layers. ओके, आउटर स्किनी एंड लेदरी एपिक्राफ्ट, आउटर पार्ट जो होता है आपका एपिक्राफ्ट, मिडिल जो फ्लेसी पार्ट होता है दैट इज द मेजोक्राफ्ट एंड द इनर द स्टोनी पार्ट इज द एंडोकार्प। ओके, जो मैंगो का अपर कवरिंग इज योर एपिकार्प एंड जो फ्लेसी वाला पार्ट जो आप खाते हो, जो जूस बोलते हैं, दैट इज द मेजोकार्प एंड जो स्टोनी कवरिंग होता है जिसके अंदर मैंगो का सीड होता है दैट इज द एंडोकार्प पार्ट। सो इसका एग्जाम्पल्स है मैंगो, कोकोनट एंड ऑरेंज। ओके, so let's discuss about the 2 types of fruit, that is one is true fruit and another one is false fruit. So true fruit क्या होता है? If the fruit is exclusively developed from the ovary, only ovary ही अगर fruit में convert होता है, so that is fruit, that fruit is called true fruit. Okay, and examples क्या है? Your mango, mustard, these are the true fruits and these fruits is exclusively developed from ovary. ओके, एंड फॉल्स फ्रूट क्या होता है? अगर फ्रूट जो डेवलप होता है ओभारी के साथ साथ ओभारी के कौन से एक एसोसिएटेड पार्ट से अगर डेवलप हुआ है, देन दैट टाइप ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ओके, एग्जांपल्स क्या है? यार एप्पल, कैश्यू नट। ओके, एप्पल का जो फ्लेसी पार्ट होता है वो थैलेमस होता है एंड कैश्यू नट का जो फ्लेसी पार्ट होता है वो पेडुनक्यूल होता है। ओके, सो दिस फ्रूट्स आर कॉल्ड द फॉल्स टाइप ऑफ फ्रूट। ये जो स्टिमुलस जो होता है, जो फ्रूट का डेवलपमेंट जो स्टिमुलस आता है वो कहाँ से आता है? जो फर्स्ट स्टिमुलस कम्स फ्रॉम पॉलिनेशन। ओके, एंड द सेकेंड स्टिमुलस कम्स फ्रॉम योर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। जब सीड का डेवलपमेंट होगा, जब पॉलिनेशन होगा, देन फ्रूट डेवलपमेंट होने के भी स्टिमुलस आ जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन वी लर्न्ड? The development of embryo, development of fruit, development of seed and development of endosperm. Okay, so this is all about your post fertilization events. So if you have any doubts, so please comment on my comment box. I will solve your doubts in my next class. Thank you.